Good morning, everyone. Today we will discuss the cause of poverty. As we know, there are many causes of the poverty when we discuss the dimension of poverty. So here, basically, we will know about that. As we know that India is called the golden bird or means सोने की चिड़िया जिसको बोलते थे. तो how can we say that our country is poor and what are the causes behind? So there are some reason like India, which remains under the domination of foreign powers, or you can say outside country ruled over us, and they have taken consistently the resources from our country, and when they ruled, the different policies affected the system or administration or the you can say conditions by which it remains under the poverty. So let's begin. What are those causes? So firstly, we know that continuously 200 years we were under the domination of British power, and this is one of the main reasons. When we go to history, the historical reason we have to discuss first, that is the level of economic development under the British colonial administration. The policies of colonial government ruled traditional handicrafts and discouraged developments of industries like textile, and the low rate of growth persisted till the 19, 19 or 80s, and this resulted the less job opportunities and low growth rate of income. This was accompanied by the high growth rate of population. So let's discuss. The first point is that British colonial rule. The reason of poverty first is that British colonial administration, and by which what happened, if you see the history last year also you read about the British policies. All the raw material used to send Britain because of industrialization, and that's why our you can say industries and craft gradually declined during that 18th century period, which discouraged the development of industries like textile. Earlier we were very much well known in the world that textile was excellent enough for our country, but due to some wrong policies of them, the development of their country, and you can say they did not take care of the our Indian craft industry. That's why it affected the country, and the low rate of growth persisted still 19 or 18. इसका फ़र्क जो है आपको 19 और 80s में भी दिखाई देता है. दिस रिजल्टेड द लेस जॉब. ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंस मिली 1947 में, तो एकदम से तो कोई इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा. सो धीरे धीरे क्या हुआ, द रिजल्टेड वॉज लेस जॉब बिकॉज फैक्ट्रीज वर नॉट देयर एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो और न्यू पॉइंट. सो अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट इनकम्स. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लेस जॉब थी तो ग्रोथ रेट क्या हुई, लो हुई. लो हुई तो क्योंकि इनकम बिल्कुल ख़त्म थी. ठीक है, सो दिस वॉज accompanied by the high growth rate of population. अब हम क्या देखते हैं इसमें कि आपका रिसोर्सेज तो हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेस जॉब है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, काम नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, जॉब कम है, तो पॉवर्टी आएगी. तो टू कंबाइन मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो. फिर इससे क्या हुआ, इकोनॉमी लो जाती है तो पर कैपिटा इनकम भी आपका लो हो गया. अनदर द फेलियर ऑफ बोथ फ्रंट्स, मतलब यहाँ पर हम दोनों में ही फेल हो जाते हैं. प्रमोशन ऑफ, ना तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है और ना ही हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल है. ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, हायर जा रही है इकोनॉमी, तो पॉपुलेशन भी अगर चली जाती है तो बैलेंस हो जाता है. लेकिन यहाँ था ये तो बढ़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ. विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर. अब यहाँ पर आते हैं, हमें कुछ अगर रे ऑफ होप दिखाई दिया, वो कहाँ आया, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम से.
ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में क्या था, एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हुआ, ठीक है, इम्प्रूव इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट होने से क्या हुआ, लिटिल बिट थोड़ा बहुत होप मिली कि यहाँ पर अब जॉब है, लेकिन कितनी, बहुत कम थी। बट द इफेक्ट रिमेन लिटिल सम पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ये बहुत लिमिटेड ही रहा, कुछ ही पार्ट में रहा। वो हम पार्ट जानते हैं कौन से है, पंजाब है और हरियाणा है, यहीं पर वो हमें दिखा, ठीक है, बाकी एरियाज में नहीं। बट द इफेक्ट लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड जॉब। अब हमें क्या चाहिए था, हमें करना था कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, दे मस्ट बी इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल कोई काम करे या गवर्नमेंट करे, पब्लिक गवर्नमेंट करे या फिर प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल करे, तो इनको काम करना बहुत ज़रूरी था। ये क्या, फिर ये क्या प्रोवाइड करेंगे, जॉब आपका देंगे, ठीक है। सो बट दीज वर नॉट इनफ absorb all the job seekers unable to find proper job in cities. Many people started working rickshaws, puller and vendor, construction workers. सबके लिए तो मुश्किल था ये, ठीक है, सब सिटीज़ में सबके लिए नहीं था, लेकिन जो लोग माइग्रेट कर रहे थे वो आकर यहाँ पर क्या बनते हैं, रिक्शा पुलर बनते हैं, ठीक है, वेंडर्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, हु वर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी। सो दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स। अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द पुअर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, तो वो स्लम्स का पॉपुलेशन, दे स्टार्ट लिविंग इन स्लम आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़ एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लार्जली रूरल फिनोमेना ऑल्सो बिकेम फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। जो अभी अर्बन सेक्टर विलेज में था, रूरल एरिया में था, ठीक है, वो अब कहाँ पर आ गया, आपका सिटीज़ में आ गया, ठीक है। सो अनदर फीचर ऑफ पॉवर्टी रेट्स दैट हैज़ बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। दूसरा अगर हम कहें कारण क्या है इसका, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज मीन सम पीपल आर रिच एंड मोर आर पुअर। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फिर कैसे है ये, क्योंकि किसी के पास लैंड कम, किसी के पास ज़्यादा। डिस्पाइट ऑफ मैनी पॉलिसीज, बहुत प्रोग्राम चलाए, have been tackled issue meaningful manner and many major policies initiative like land reforms which aim the redistribution of assets rural areas have been implemented properly and effectively by most of the state government since lack of land resources have been one of the main cause of poverty in India. Proper implementation policy have could improve the life of the millions of rural people. सो मैनी ऑफ अदर सोशल कल्चर, ये तो हमारे मेन थे आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर इसी में हम सोशल कल्चर निकालें, सोशल कल्चर का मतलब होता है समाज के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जिनको हमें देखना ही है, वी कैन नॉट इग्नोर देम, बट मनी ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो सोशल कल्चर, मनी, इकोनॉमिक फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। होता क्या है, वी सी इन सिंपल एंड ऑर्डिनरी फैमिली इन विलेज कि हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस बहुत है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशन, ये आपके पास वर्ड भी आ गया, सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि आप ना चाहकर भी रीति रिवाज करने पड़ते हैं। लाइक आपके यहाँ बर्थ होती है, सेलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, बर्थ में सेलिब्रेशन है, डेथ में भी सेलिब्रेशन है, फिर आपके मैरिजेस हैं, बर्थडेज हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, ना हमारी हिम्मत है और हैसियत है फिर भी हमको सेलिब्रेट करने हैं, ठीक है। तो लाइक रिलीजियस सेरेमनी, अब रिलीजियस मेन आता है, तीज त्यौहार, होली, दिवाली मनाना ही है, कैसे भी मनाएंगे। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। पता है हमारे देश में गरीबी है, फिर भी हम ज़्यादा पैसा किस में खर्च करते हैं, कल्चरल और सेरेमनीज में। स्मॉल फार्मर नीड मनी, रिच है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी मना रहे हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्मॉल फार्मर। एंड बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर। फिर दूसरा क्या है, अगर इनको एग्रीकल्चर से देखें तो इनके पास कुछ भी सेविंग नहीं है, नीदर दे हैव मनी नॉर दे हैव इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, एनी सेविंग्स एंड दे बोरो अनएबल टू रीपे बिकॉज पॉवर्टी। तो ये क्रेडिट ले तो लेते हैं लेकिन इनसे सेटल नहीं होता, बोरो करते हैं सेटल नहीं होता, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि हम, मतलब डेप्थ समझ आता है आपको, कर्ज लेना। इंडेप्टनेस मतलब एक ऐसी कंडीशन विच कैन नॉट बी कट और रिमूव,
ठीक है, वो कर्जे में बन जाते हैं। मतलब अब पुअर हैं, उनके पास ज़रूरी गारंटी थोड़ी है कि एक क्रेडिट लेने के बाद वो अगली बार से सही हो जाएगा। सपोज़ इफ़ क्रॉप फेलियर टेक प्लेस, ठीक है, एक पुअर कोई फार्मर है, ठीक है, उसने क्या किया, कोई भी फार्मर है, ABC है, उसने क्या किया, शी टुक लोन। किससे लिया, अपने मनी लेंडर से लिया। क्यों, क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकती है, अनपढ़ है, उसको इतना कुछ काम पता नहीं है। शी इज़ फोर्स टू टेक, क्योंकि बैंक जो देगा वो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे देगा, और कोई भी आपको जो आपका रिलेटिव है या एम्प्लॉय, जो भी आपका विलेज हेडमैन है, वो आपको किससे दे देगा, आपकी जान पहचान पे हल्का फुल्का डॉक्यूमेंटेशन। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अगर क्रॉप फेलियर आ गया, लोन कुड नॉट बी सेटल्ड बाय हर, फॉर द नेक्स्ट टाइम शी विल टेक अगेन द लोन फ्रॉम दैट, और ही विल टेक अगेन द लोन फ्रॉम दैट। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, बनी रहती है, दैट इज कॉल्ड इंडेप्टनेस। तो हमने यहाँ पर कितने पॉइंट डिस्कस करे, वी कैन रिवाइज देम। द रीज़न ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट इज आपका हिस्टोरिकल रीज़न है, फिर आपका आता है हिस्टोरिकल में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंस के बाद आपका इनकम इनइक्वलिटीज़ का रोल है, फिर आपका सोशो कल्चर है, फिर आपका जो लास्ट है वो आपका इंडेप्टनेस है। ये पॉइंट हमने इस पर डिस्कस किए। तो हिस्टोरिकल ब्रिटिश पीरियड है, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम से सम इम्प्रूवमेंट हैड कम बट इट वाज लिमिटेड टू पंजाब एंड हरियाणा। इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम में हम अगर देखते हैं तो इसमें ये आता है कि कितनी पॉलिसीज़ जो है, क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपरली अफेक्टेड रीजन, और लैंड रिसोर्स मतलब उसको लैंड और रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग। फिर सोशल कल्चर है, विली और नीली पीपल हैव टू पार्टिसिपेट इन सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़। और फिर आपका इंडेप्टनेस आता है, वेदर इट हैपन्स टू द पुअर फार्मर ओनली। सो दिस वाज द causes, these were the causes, so repeat them, revise them so that you can learn better. Okay, thank you, have a nice day.